and develop their scientific temper around the environment, thereby creating young scientists, leaders, and stewards among them. Let us move further. Now, I would like to invite Honorable Resource Person, Mr. Sahil Chabra, to tell us in more detailed way on the mentioned theme and workshop. Sir. Good afternoon, everyone. How are you all? Thank you so much for inviting us here, and it is a pleasure to have here. And my name is Sahil Chavda, and I'll be conducting the workshop today. And I'll just connect my laptop, then we can start. Thank you. कर ले इस तरह से कोई दिक्कत नहीं Okay, so before we start, आप लोगों को ये करना है कि like you have to go to you have to take out your phones and type www.menti.com and enter this code. Whenever everyone is ready, please let me know. You can also scan the barcode. Shall we start? Everyone is ready? Okay. So, before starting, I just wanted to engage with you all before presenting. So, you have to enter, you'll be getting an option to enter. So, you have to enter what's your favorite tree. कोई भी हो सकता है, neem, people, banyan, any tree. Is it showing there? Yes, sir. So, please enter your favorite tree. You can also enter multiple options if you want. Okay, I guess has everyone entered? Okay. So personally, I like neem tree. So I see banyan, guava, gulmohar, ashok, mango. So okay, nice. So let's move on to next slide. Here there will be a little quiz, pre-question quiz, and there will also be a leaderboard. So answer as per your best knowledge. Okay. You will get 20 seconds to answer this question.
So what is the Delhi green cover? You will get the options. 15 to 20%, 20 to 25%, 25% to 30%, or above 30%. Time is up. Okay, so most of you have answered correctly. Delhi has a tree cover of more than 23.08%. So, like in India's Forest Department releases the India State of Forest Report every 2 years. So these are the figures we can find there. So let's move on to next question. What tree species has the largest share of percentage in Delhi's tree cover? Option 1, peepal tree. Option 2, neem. Option 3, vilaiti kikar. And option 4, banyan tree. Okay, so we have a tie. 12 of you thinks neem, we have neem and we have vilaiti kikar. So the correct answer is vilaiti kikar. So like in our study also, I'll let you know like what we have done. We have found almost 20 to 30% of Delhi trees are vilaiti kikar. It's an invasive species. It was introduced by Britishers in around 1870s. It's a native of South America. Question number 3, the last question. What benefits do trees provide to us humans? Option A, carbon sequestration and storage. Option 2, air pollution removal. Option 3, stormwater runoff. Option 4, oxygen production. And option 5, all of the above. देख रहे हो 1.8 सेकंड में किया है. Okay, so most of you have answered correctly. Trees provide all of these benefits. Apart from that, we also have multiple benefits which are not mentioned here. So let's see leaderboard. It's not moving. I think there is some problem, but we can say like the top 3 part like who has the most answer right, Kavalya on position 1, on number 2 Lakshya, and on number 3 Avni. So can we clap for these two? Thank you. So I'll start my presentation now. Okay. So, as you know, the name of the workshop is Young Scientist Workshop. That's right. Okay. So, actually, my name is Sahil Chavda, and I come from Give Me Trees Trust. And I work with Give Me Trees Trust, and I also work with United States Forest Service. So, this workshop is done with the assistance of US Forest Service. It's the Forest Department of United States of America. About Give Me Trees Trust, it's one of the largest tree plantation organization in India. Our founder Pipal Baba started this organization in 1977,
and since then we have planted more than 23 million trees, right? Like for those which we have submitted the data to the government, and why like our founder real name is Swami Prem Parivartan, but he is popularly known as People Baba because he has planted more than 1 crore people trees, right? And apart from tree plantation, our main area of work is nature education. We go to schools, we go to colleges, we go to education centers of certain NGOs where we conduct workshop sessions to engage with students, youth, right? Like we are doing here. And about United States of Forest Service, it's world's oldest and largest forest department, right? They are the experts when we talk about forest department, and they are backed by science. They have more scientific tools than we have in India, right? And so like what we are doing here. Unity Plus and United States of Forest Service have conducted a citywide tree impact assessment of Delhi trees. The project was started in 2020, November 2020, and it took us 2 years. Where we visited almost 500 plus plots. So plots in the sense locations where we went to Delhi NCT, Delhi area, and we collected the data. And why we collected the data? Because we wanted to know what benefit these trees are providing. So, United States of the US Forest Service have a tool named iTree. With this, we can quantify tree benefits. So we'll learn about that here. Next. Okay. So आप सबको पता ही होगा कि ट्रीज के बारे में. So ये बेसिक स्लाइड है कि ट्रीज के बेनिफिट्स क्या होते हैं. What values these trees provide to us? So trees provide the enormous values and services to us humans. They provide us oxygen to breathe. They store carbon they remove carbon from the atmosphere. They remove air pollution, and they also provide cooling effect. We know all these benefits. We are studying this from our childhood, from our school, right? We know about this, right? Now the main question to ask is what benefits, how to quantify these benefits, right? हमें कैसे पता लगेगा अगर कोई सामने पीपल का पेड़ लगा है वो हमें कितने बेनिफिट्स देगा? Next slide. Okay. So like I told you, how will we know like what benefits these tree will provide us? Can we prove this with real data कि ये benefit जो trees हैं ये हमें benefit देते हैं? Like they provide us they have a positive outcomes, right? And हम अगर देते हैं तो how can we measure these ecosystem services or the benefit these trees provide to us, right? And according to that, how can we manage our landscape? How can we know what species to plant, right? Like if it you must know about climate change, global warming, and like we are hearing that clock is ticking, right? Like time चल रहा है, and उस time तक if we don't, like we are not able to overcome the problem of climate change and global warming and the rising temperature, then we will miss that bus or train, right? So अगर हमें पता नहीं होगा हमें कितने trees plant करने हैं, कितना हमें कार्बन अपने एटमॉस्फेयर से रिमूव करना है, तो we won't be able to achieve our targets. So we always hear these deadlines कि 2020 तक या 2050 तक हमें इतना कार्बन रिमूव करना है एटमॉस्फेयर से जिससे कि टेम्परेचर राइज जो 1.5 डिग्री सेल्सियस रहे, राइट? नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so to quantify these benefits that trees provide to us, we use iTree. iTree is a state-of-art tool developed by United States Forest Service with certain partners. So this tool iTree, आप सबको पता है कि जैसे Google Suite होता है, Google Suite का पता है आपको क्या होता है उसमें प्रोडक्ट्स? Google Suite जो होता है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं?
PowerPoint. गूगल के बारे में सुना है? तो क्या क्या चीजें होती है गूगल में? Jira, सॉरी, डॉक्स, Excel, Sheets, एक्सेल, गूगल शीट, गूगल मीट, गूगल मैप्स। Google Slides. तो ये जो सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, गूगल इसको गूगल स्वीट बोलता है, ठीक है। सो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अगर गूगल यूज करना है, ठीक है, दे हैव टू लाइक दे बाय दी स्वीट फ्रॉम द गूगल, तो उसको गूगल स्वीट बोलते हैं जो भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसे आईटी हैज इट्स ओन स्वीट, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। So this suite, like this i3 has certain tools which we can use as far as assessing the tree benefits are concerned. So we have i3 Canopy, i3 Eco, i3 Database. These are the tools that we can use, but all of these tools are not available in India. These tools are available in United States of America. But as if we talk about India, we can use i3 Canopy, i3 Eco, i3 Database and my3. So आज हम i3 Canopy की बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। So this i3 is used globally in more than 100 cities, right? And like these are the countries where it's fully integrated. Like पूरे country में you can use i3. i3 use करने के लिए you have to do some local modeling. It's related to data and certain requirements you have to fulfill. So yes, we can now use it in New Delhi. Next slide. Okay. So like I told you, हमने दिल्ली में trees पे impact assessment किया है. So why we did it? क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लाइक ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। एंड दीज आर द हेडलाइंस दैट वी सी लाइक इन आवर न्यूज़पेपर every winters. Before COVID we used to wear masks. And उससे पहले भी like I think last year I remember air pollution की वजह से schools were closed, right? So these are the headlines that we see in the newspaper every month, every year. Next slide. So like I told you, we have use i3 in Delhi, and i3 help us to quantify tree benefits. Right, and we have visited more than 500 locations, and it took us more than 2 years. Next slide. So this is the gist of results that i3 can show us. So carbon storage. We got to know Delhi trees store around 1.5 million tons of carbon in them, right? And the annual carbon sequestration. So carbon storage, let me explain. Trees store carbon in them, and in their branches, leaves, and trunk. Carbon sequestration is annual reduction of carbon from the atmosphere by trees. So it's year-on-year basis. So Delhi trees remove approximately 74,000 tons of carbon every year. And the oxygen production rate is 174,000 tons per year. Right. Next slide. And pollution removal is 7,000 tons per year. And avoided runoff is 110 million cubic feet per year. So actually, I'm just trying to show what benefits these trees provide to us. जो हमने last question answer किया था उसमें we have carbon storage and carbon sequestration, air pollution removal, storm water runoff and oxygen production. Right. So these benefits we can measure with the help of i3. Okay. Next slide.
Okay, so what is the objective of this workshop? Abhi, maybe it will be sounding more, overwhelming. इतना सारा information है. So basically, I am just showing कि what is the power of data here. With data, we can, set targets, achieve targets, and maybe, overcome global warming or something, right? So the objective of this workshop is education and awareness. We are here to educate you, aware you. We want to connect with as many as people we can in our movement. We want to inspire leaders like you, scientists like you, stewards like you who can, who will be leading this country, right? And we want to motivate you all because I see like most of you are here undergraduates, right? We want to motivate you to pick a career in a green fields. So there are a lot of career coming in these fields. I am personally I've done my graduation from PG Devi College. I've done BCom honors, and I am doing this. So you can also do this. You can come in this field. Every company now has a sustainability department. जिनमें they need people. It doesn't matter if you are from environment field or from geology background or botany department. Even if you are from commerce, economics, you can work in this field, right? And we can't, if we say if we are working in a corporate, we can't do in isolation with the environment. Now everyone is connected. We are talking about green GDP, we are talking about national resource accounting. So yeah, next slide. One second. Now I'll be showing you about a tool that you guys can use, right? The workshop is Young Scientist Workshop, so you can know what percentage of tree cover is there in any city, right? You can do that in around 2 to 2.5 hours. I'll be demonstrating that on my laptop, right? And the tool name is IT Canopy. Okay, canopy means जो ट्री होता है उसका जो ग्रीन पार्ट होता है ग्राउंड जो उससे कैनोपी बनता है उसको हम कैनोपी बोलते हैं. ओके, सो so am I audible without mic? Yes, Okay. sir. So you can Google IT Canopy, Google पे, and you can start your survey. ठीक है? This is no. वर्कशॉप को इंसाइटफुल वर्कशॉप से रिप्लेस कर दें, लेकिन इंसाइटफुल थोड़ा कम ठीक लगता है ना सुनने में. इंफॉर्मेटिव बेटर है. ओके, सो IT Canopy जो होता है वो हमें बताता है कि आपकी सिटी में, आप किसी भी सिटी में, स्टेट में, कंट्री में देख सकते हो कि ट्री कवर कितना है. ठीक है, जो अभी आप लोगों ने आंसर किया 23% ऑफ ग्रीन कवर दिल्ली का, यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट, किसी भी सिटी का. पकड़ने आ रहा है. इसके लिए IT Canopy यूज करने के लिए आप लोगों को बस एक चीज चाहिए, शेप फाइल. ठीक है, शेप फाइल का मतलब होता है कि बाउंड्री फाइल किसी भी सिटी की, किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, राइट. एंड आप अपने कॉलेज का भी कर सकते हो. ठीक है, तो वो हम बना भी सकते हैं. अगर नहीं अवेलेबल है आप ड्रॉ कर सकते हो गूगल मैप पे. ठीक है, तो बेसिकली GIS फाइल होती है, शेप फाइल.
जिसका यूज करके आप ये सर्वे कर सकते हो। एंड इंडिया में तो एटलीस्ट जितने भी सिटीज हैं, विलेजेस हैं, स्टेट्स हैं, उनका सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सारी शेप फाइल्स अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड दोज फाइल्स एंड टू ट्राई दिस टूल। So when you search IT Canopy, एक पहला लिंक आएगा canopy.it-tools.org, आप वो क्लिक करेंगे, then this interface will come and here it say get started. It will show a map like this and there is this option load shapefile boundary, right? यहाँ पर आपको shapefile upload करनी है जिसकी मैंने बात की थी। So मैं दिल्ली का आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ओके, PRG फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है, SHP फाइल का एक्सटेंशन है, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें दिल्ली की बाउंड्री बने में मिल जाएगी। यहाँ पर ये दिल्ली है, दिल्ली NCR नहीं, दिल्ली NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सो वील गो टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर देयर आर दिस डिफॉल्ट ऑप्शंस। मिस हो रहा है बट ठीक है। So default options are trees and shrubs, grass and herbaceous, impervious buildings. So trees clear है हमें, grass भी clear है। Impervious buildings जितनी भी इंडिया में जो बिल्डिंग है वो impervious है। Impervious यानी कि अगर उसके ऊपर से पानी जा रहा है तो वो अंदर नहीं आएगा, ठीक है। You can't imperviate it, right? Then there is this impervious roads, सारी roads इंडिया की impervious है। And impervious others, impervious others में जैसे पार्किंग लॉट्स हो गया या कोई भी ऐसी चीज जो रोड्स एंड बिल्डिंग्स में कवर नहीं हो रही, ठीक है। देन देयर इज दिस वाटर, तो अगर कोई वाटर बॉडी आती है, लाइक दिस टूल यूज गूगल सैटेलाइट व्यू, राइट, तो उसमें जैसे यमुना अगर आती है दिल्ली में, हम वाटर फिल करेंगे। एंड देन देयर इज दिस सॉइल वेयर ग्राउंड, राइट। इवन इफ अगर आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं चाहिए, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको डिलीट करके ट्री एंड नॉन ट्री भी कर सकते हो, तो वो इजी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी जैसे एडिट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ चीजें ऐसी आती है जो हमें पता नहीं लग पाता कि क्या है, ठीक है। कभी फोटोज क्लियर नहीं होती है, जो भी है, यू कैन पुट इट इन मिसलेनियस। And this asks me, is it a tree cover or not? So of course it's not. No. Okay. Okay. So this is created. Now we can, go to next. यहाँ पर it asks कि जो अवेलेबल लोकेशंस हैं, कौन सा ऐसा USA में स्टेट है जो इंडिया का वेदर और वहाँ का वेदर सिमिलर है, राइट। सो इंडिया का जो वेदर है वो कैलिफोर्निया से काफी सिमिलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लाइक एरो पे क्लिक करेंगे एंड कैलिफोर्निया सेलेक्ट करेंगे, राइट। नाउ इट विल आस्क लाइक रूरल है या अर्बन है, तो दिल्ली इट्स अर्बन। एक्चुअली हम यहाँ इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दिस इज अ यूएस टूल, तो वहाँ की वैल्यूज यूज होती है। इंडिया में अभी फुली इंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो हमें थोड़ा रेप्लिकेट करना पड़ेगा। नाउ वी एंटर आवर करेंसी, and we can select from like type of measurement units,
इंग्लिश और मैट्रिक, तो इंडिया में तो मैट्रिक चलता है, तो मैट्रिक। नेक्स्ट, so now what it will do now, it will start showing points. तो ये चीज़ में So points कोई भी ऐसी, for example आपका एक point शहीद भगत सिंह कॉलेज के ऊपर ही आ गया, so it will start the survey, right? So निकल I'll show you. So here it is, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, so ये ऐसे पॉइंट्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप, राइट? सो ये क्या लग रहा है आप लोगों को? इज इट लाइक ट्री तो नहीं है, ये कौन सी कैटेगरी में फिट होगा? या सो एग्रीकल्चर फील्ड हर्बेशियस में आ जाता है, ठीक है? हमने अलग से एग्रीकल्चर की वो नहीं बनाई है, तो हम बना सकते हैं, बट अभी हम ये ग्रास एंड हर्बेशियस में डाल देंगे। देन सेव एंड क्रिएट न्यू, ये भी सेम है, यस और नो? ओके, नाउ कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? क्या लग रहा है? सेटलमेंट्स है, तो इनमें से किस में फिट हो सकता है? इम्परवियस बिल्डिंग्स, बिल्डिंग है, करेक्ट? सेव एंड क्रिएट न्यू। तो बेसिकली ये स्टैट्स यूज करेगा यहाँ पर, ये टूल। ये क्या लग रहा है? बट जो ये आ रहा है ना येलो वाला पॉइंट, ये देखना है हमें, ये इसके सेंटर में कहाँ पर आ रहा है? तो इसको हम बेयर ग्राउंड या सॉइल में डाल सकते हैं। नाउ एग्रीकल्चर क्या रोड? ये रोड भी है, तो ये येलो वाला पॉइंट है, एग्रीकल्चर ही है, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर। जॉब्स के बारे में बात नहीं होती है। जॉब्स के बारे में बात नहीं होती है। थीम में कुछ कंफ्यूजन था, तो वो खुद ही मेरे को लास्ट में एग्रीकल्चर लैंड, ग्रास एंड हर्बेशियस। अब इम्परवियस बिल्डिंग्स, ये तो थोड़ा ट्रीज है। लाइट बिल्डिंग्स लाइट। ये येलो वाला कहाँ पे? ट्रीज पे है ना, मुझे कैनोपी लग रही है, ये ट्रीज लग रही हाँ, है, अब क्लियर ये तो ट्रीज है, हाँ वैसे तो ट्रीज ही है। ट्रीज। ट्रीज, अच्छा येलो पॉइंट्स तो trees। तो हमने ट्रीज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेव एंड क्रिएट न्यू। तो ऐसे करके ये चलता रहेगा अपने आप। अब हमें अगर एक अनबायस्ड, एक न्यूट्रल रिजल्ट निकालना है, हमें मिनिमम 500 पॉइंट्स करने पड़ेंगे, राइट? सो अगर आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ा होगा, तो एक स्टैंडर्ड एरर नाम का एक कंसेप्ट होता है, जिसमें अगर हम ऐसे सैंपल्स लेते हैं कहीं से, तो एक स्टैंडर्ड एरर भी आता है। तो स्टैंडर्ड एरर अगर 5% से कम है, तो आपका रिजल्ट, आपका सर्वे जो है वो परफेक्ट हो सकता है, ठीक है? बट वो तभी होगा आप जितने ज़्यादा सैंपल्स लोगे, राइट? सो सैंपल्स अगर ज़्यादा लोगे तो स्टैंडर्ड एरर भी कम रहेगा। तो ऐसा वी से कि इफ यू डू 500 पॉइंट्स हियर, तो यू कैन मेक प्रीटी मच एस्टिमेशन कि कितना ट्री कवर है किसी भी एरिया का, राइट? सो ये क्या लग रहा है? ट्री, ये ट्रीज नहीं है, वैसे पास में है, बट नीचे ग्राउंड है, तो ये अदर इम्परवियस में आएगा। ये क्या लग रहा है? बिल्डिंग्स, है ना? So you can do ये आगे खुद से, like it's like that only। जितना भी आपको बेस्ट जजमेंट है वो करना है। अगर ये है तो मैं
मैंने दिल्ली का ऑलरेडी करके रख रखा है 500 पॉइंट्स का, सो आई कैन शो यू कैसे दिखाता है, राइट। सो जैसे यहाँ पर 500 पॉइंट्स होंगे, यू कैन गो टू रिपोर्ट, राइट। आई विल शो यू हाउ इट विल लुक लाइक। You can also save this in your computer. ये दिल्ली का है पूरा। सो ये 500 पॉइंट्स जब हो जाते हैं तो ऐसे दिखते हैं पूरे, ठीक है। सो जब हम यहाँ रिपोर्ट पे जाएंगे तो ये आपको एक तो ट्री कवर भी बताएगा और साथ ही साथ एक थोड़ा सा एस्टिमेट भी देगा कि ये क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्यूरेट नहीं होंगे क्योंकि हमने ये 2-2.5 घंटे में यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट बेनिफिट्स, ठीक है। हमें 2 साल लगा, वो एक अलग चीज है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, बट ये थोड़ा आइडिया दे सकता है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। सो ये ऐसे रिजल्ट शो करेगा कि आपके एग्रीकल्चर लैंड पे 103 पॉइंट्स आए हैं, वो डिपेंड करेगा आपके सर्वे पे, एंड इट विल शो परसेंटेज आल्सो एंड प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर। सो प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर का मतलब है ये आपको एक रेंज दे देगा, राइट। तो आप उसको प्लस माइनस करोगे तो अराउंड 19 to 21%, 22% जो है वो एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, राइट। एंड हमारा ट्रीज कितना आ रहा है, ट्री कवर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इसमें देखो 1.8 परसेंटेज में कितना आ रहा है? 20.6 प्लस माइनस 1.81, राइट। सो अगर हमारा गवर्नमेंट के साथ भी डेटा मैच कर रहा है, राइट, अगर हम थोड़ा रेंज लेके चले तो 23% होगा भी है, ओके। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट कहीं का भी ट्री कवर एंड क्या कहते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो भी ऐसे ही यूज करते हैं, गूगल इमेजरी, गूगल अर्थ का यूज करते हैं, राइट। सो आपको मतलब कोई भी अगर करना चाहता है एज अ प्रोजेक्ट, आपको सबमिट करना है, या यहाँ जो टीचर्स हैं वो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, तो इसमें 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, ओके। Now, like, give me a minute, I'll show you the results also. इस प्रोजेक्ट में मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो वैल्यूज नहीं है, तो मैं ये चेंज कर रहा हूँ। सो पहले तो परसेंटेज लैंड कवर किसी भी कैटेगरी का, देन उसके बाद इट विल शो यू कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन आल्सो, राइट। यहाँ पर जैसे ही दिखा रहा है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन एनुअली इज 145 किलोटन्स, राइट। एंड इट इज आल्सो शोइंग एयर पॉल्यूशन रिमूवल, जो भी सारे हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, CO, नाइट्रोजन dioxide, ozone, sulfur, PM10, PM2.5, you can see their values also in terms of tons and their standard errors. And there is this last water related benefits, right? So ये है, and I'll do one thing, I'll explain ये benefits एक बार, ठीक है। So air pollution removal trees जो होते हैं
वो एयर पॉल्यूशन को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। उनकी जो लीव्स होती हैं, तो जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कम होगा आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो दिल्ली को तो बहुत सारे ट्रीज की जरूरत है, ठीक है। सेकेंडली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हर साल एनुअली ट्रीज जो होते हैं कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं। सिक्वेस्टर यानी कि अब्सॉर्ब करते हैं अपने अंदर, वो हमने पढ़ा ही है अपने साइंस में, CO2 अब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट। कार्बन स्टोरेज का मतलब होता है कोई भी एक ट्री अपने लाइफ टाइम में कितना कार्बन स्टोर करेगा। अब किसी ट्री की एज अगर 100 इयर्स है तो 100 इयर्स में कितना कार्बन इट विल स्टोर, राइट। एंड हाइड्रोलॉजी बेनिफिट्स में आता है अवॉइडेड रन ऑफ। तो जो भी बारिश होती है उसका जो अगर पानी होता है वो कहाँ जाता है, कहाँ पर, ग्राउंड में कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, परकुलेट होकर के, थोड़ा देर बोलें, परकुलेशन के परकुलेट होकर के। हाँ, बट अगर आपका पूरा कंक्रीट है, ठीक है, बिल्डिंग्स है, इम्परवियस चीजें हैं आपके आसपास, तो पानी कहाँ जाएगा, नालियों में जाएगा, ड्रेन्स में जाएगा, राइट। तो वो स्टोर नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ट्रीज होंगे, ठीक है, तो वो पानी उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, ठीक है। तो जो भी पानी अवॉइड हो सकता था रन ऑफ होने की वजह से, वो ट्रीज स्टोर करते हैं, ठीक है। वो अपने अंदर भी स्टोर करते हैं एंड वो मिट्टी में भी जाता है। उससे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ओके। सो जो दिल्ली की, मैं हमेशा बोलता हूँ, दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन। आने के सेंस में बड़ा बात करते हैं, वो तो चलो ठीक है। एयर पॉल्यूशन के अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, एंड तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर पॉल्यूशन। चलो पॉल्यूशन ही और क्या है, गर्मी ज्यादा लगती है हमें, ठीक है। अब हमें दिल्ली में AC के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक मीम आता है कि अर्थ इधर है, सन इधर है, दिल्ली NCR इधर है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्रीज लगा के, ठीक है। एयर पॉल्यूशन रिमूव करते हैं, वाटर जो होता है स्केर्सिटी ऑफ वाटर को कम कर सकते हैं, कैसे, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करके। तो अभी आपने सुंदर नर्सरी के बारे में सुना होगा, गए हो, तो सुंदर नर्सरी में अब पता है क्या होता है, जो उसके आसपास के एरिया है, जो आपके पुराने घर बने हुए हैं, उनके अंडरग्राउंड बेसमेंट में पानी आने लगा है। मतलब मैं बना के नहीं बोला बात, ये सच है, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी आया था, राइट। तो दिस इज अ लाइक प्रूफ कि ऐसा होता है, ठीक है। एंड गर्मी, ठीक है, अगर ट्रीज होंगे, आप जो ल्यूटियंस दिल्ली हम बोलते हैं, ठीक है, वहां जाते हैं गर्मियों में, तो हमें गर्मी कम लगती है वहां, ठीक है। इट आल्सो प्रूव्स कि ट्रीज प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। वो कैसे होते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं, राइट। सो एंड जो ये IT है, ये हमें थोड़ा डेटा वाले से बताता है, क्योंकि हमें डेटा की आजकल नाम था उसका, जैसे मैंने बताया टारगेट सेट करने के लिए। अब हम बोल सकते हैं हमें 1 बिलियन ट्रीज लगा लो, 2 बिलियन ट्रीज लगा लो, बट वो एक बिना डेटा बैक्ड टारगेट हो गया, राइट। तो ऐसे तो कितने भी लगा लो, आपको पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है, ठीक है। अगर डेडलाइन ना हो तो ठीक है, ठीक है। अगर 50 इयर्स की हम बात करते हैं तो ठीक है, तब इतना प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब प्रॉब्लम है। अब 2020 की बात कर, 2030 की बात करते हैं, 2050 की बात करते हैं। इंडिया ने तो 2070 तक वो क्या कहते हैं प्लेज किया है कार्बन न्यूट्रल बनने का, है ना। सो ये अभी इंडिया में थोड़ा नया है, बट ये धीरे धीरे चीजें इंट्रोड्यूस होंगी, राइट। किसी को इसमें डाउट है इलेक्ट्रिक कैनोपी को लेकर? ये आप लोग खुद भी कर सकते हो एज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये टूल सबसे बेस्ट परसेंटेज ट्री कवर निकालने में यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स बताता है, बट वो इसकी लिमिटेशन है कि वो बेनिफिट्स एक्यूरेट कम होंगे, एस्टिमेट्स कम एक्यूरेट होंगे, क्योंकि वही मैंने बताया 2.5 आवर्स में आप पता नहीं कर सकते क्या बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? हाँ जी। लोग शेप फाइल बाउंड्री में बाउंड्री कैसे बनाएंगे?
अच्छा हाँ ठीक है। तो अगर किसी भी आपको सिटी की, विलेज की, स्टेट की या कंट्री की फाइल चाहिए इंडिया में, तो सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहां पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां फ्री अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको अपने कॉलेज का करना है, वो कैसे करते हैं, चलो वो देख लेते हैं। इस पे ऑप्शन है कि आप ड्रॉ भी कर सकते हो। जब भी आपका प्रोजेक्ट हो जाए उसको सेव कर लो एंड यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ये कौन कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पीछे पूरा ड्रॉ योर बाउंड्री, ओके। पीछे तो जैसे यहाँ सीरी फोर्ट है, तो ये ड्रॉ करने लगेगा, ऐसे पॉलीगन बना सकते हो आप, ओके। वेरी इजी, मतलब इसमें कुछ आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो होती है सिटीज, स्टेट्स, वो आपको सर्वे ऑफ इंडिया से अवेलेबल हो जाएगा, गवर्नमेंट की साइट है, ठीक है। देन यू कैन डू यहाँ का भी सर्वे। तो वो तो QGIS से भी शेप फाइल बना सकते हैं। हाँ, वहां से भी बना सकते हैं, गूगल मैप पे भी शेप फाइल बन जाती है। एनी मोर डाउट्स इसमें? सबको समझ आएगा? सवाल पूछो। कुछ ओके, सो अब मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा कि अगर हमें बेनिफिट्स जानने हैं, ठीक है, ये दिस इज अ इंट्रोडक्टरी टूल, ये कोई भी यूज कर सकता है, इसमें आपको कुछ ये नहीं है कि आपको इन्वायरमेंट का ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्टैट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सको कि गूगल मैप पे देख के लेकिन कौन सा लैंड कवर है ये, इज इट अ ट्री, इज इट अ बिल्डिंग, इज इट अ रोड, ओके। नाउ अगर आपको बेनिफिट्स पता करने हैं तो iTree का जो फ्लैगशिप टूल है वो है iTree Eco, ठीक है। iTree Eco में आप डिटेल्स में जाके सारे बेनिफिट्स पता कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको हम लोग क्या करते हैं, अभी अभिषेक से बात हो रही थी कि हम लोग थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे बाहर कि अगर हम फील्ड पे लोकेशन पे जाकर डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। तो जो हमने दिल्ली का जो ट्री इम्पैक्ट असेसमेंट किया है उसमें हम 500 लोकेशंस पे गए थे। तो एक इसमें टर्म होती है प्लॉट, ठीक है। तो प्लॉट का मतलब ये होता है कि वो प्लॉट्स जो थे वो हमने गूगल के थ्रू रैंडमली जनरेट किए थे 500 पॉइंट्स, एंड प्लॉट की डेफिनेशन हमने रखी थी कि फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटर पॉइंट है, ये गूगल मैप के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ रहे हैं जाके, इसके 20 मीटर के रेडियस में जो भी ट्रीज आएंगे वो हमारे सैंपल में आएंगे, उनको हमें मेजर करना है, उनका डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। एंड अगर कोई नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्री ना आए, जीरो ट्री, तो बस हम उसकी वीडियो बना के आ जाते एज अ प्रूफ कि कोई ट्री नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग अब पूछ सकते हो कि ऐसे तो फिर ट्रीज आएंगे नहीं, तो फिर वो अनवाइज सैम्पलिंग कैसे होगी, है ना। अनवाइज सैम्पलिंग के लिए हमें वो एरियाज भी लेने पड़ेंगे जहाँ ट्रीज है, वो भी लेने पड़ेंगे जहाँ कोई ट्री नहीं है। तो वो हमने वैसे लोकेशंस पे किए, हमने अराउंड 3500 ट्रीज मेजर किए थे, इसमें हमें 1.5-2 साल लगे, एंड देन हमने उसको iTree Eco पे रन किया, राइट, एंड उससे हमें फिर रिजल्ट्स पता लगे, ठीक है। एंड वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, वो हम 1 घंटे में नहीं सीख सकते, उसमें थोड़ा 1 महीना मिनिमम लगता है, ठीक है। तो बट ये आप लोगों के लिए आप लोग कर सकते हो। एंड किसी को कोई सवाल है? ठीक है। एक चीज और, अगर कोई स्टूडेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमें एक ये सर्वे करके देता है किसी भी सिटी का इंडिया में, हम उसको वो मतलब या तो वो अभिषेक को दे सकता है, अभिषेक कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे मेल कर सकते हो, तो हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे।
ठीक है कि लाइक यू हैव डन दिस सर्वे 3-4 आवर्स लगेंगे बट यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट जिसमें यूएस गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का एंड यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेस्ट सर्विस का लोगो होगा, ठीक है। सो दैट्स अप टू यू अगर इफ यू वांट टू डू दैट। एंड आईटी के बारे में अगर हमारा और यहाँ पर आना जाना लगा रहा, अगर अभिषेक एंड टीचर्स अलाउ करते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि अगर हम आपके कैंपस का प्री इम्पैक्ट असेसमेंट भी करें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम एक हफ्ते की वर्कशॉप प्लान कर लें एंड उसमें हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे, स्टूडेंट्स को, एंड वो हम लोग ट्रीज मेजर करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेजरमेंट में वेरिएबल्स का मतलब सबको पता होगा, तो अराउंड 10 to 12 वेरिएबल्स होते हैं ट्री मेजरमेंट में। फॉर एग्जांपल डीबीएच होता है, डायमीटर, ब्रेस्ट हाइट, ट्री हाइट होता है, डायमेंशंस होते हैं और ट्री हेल्थ होता है, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, स्पीसीज लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो एक अलग एक्सरसाइज हो जाती है, वो हम आज करना चाह रहे थे बट आई थिंक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ये नहीं लेट हो जाएगा ना। तो ऐसे हरितक्रम ने ट्री सेंसस कंडक्ट किया था कुछ सालों पहले, अच्छा। जिसमें हम लोगों ने ट्री के कोऑर्डिनेट्स और उनकी स्पीसीज को एक्सेल शीट मैंने आपकी शायद रिपोर्ट देखी है वो वाली, Yes. आप अपलोड भी किया हुआ है ना। यस हाँ, वो अच्छा था। तो वो हम कर सकते हैं, लाइक अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर टीचर्स प्लान करेगी, एक ऐसी एक्टिविटी हम करना चाहें तो हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड एनी डाउट्स सो फार? इसके बाद नहीं, किसी को कुछ मोटिवेशन आया कि ऐसी जॉब्स ढूंढनी है? सर आया नहीं, ठीक है, बट ये कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, आप जो भी करोगे इससे कनेक्टेड ही रहेगा, ठीक है। बल्कि आई बिलीव जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं आने वाले टाइम में हम कार्बन को भी एज अ कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। जब गवर्नमेंट का लॉ आएगा कि आपको कार्बन भी इंक्लूड करना है, कार्बन कॉस्ट, ठीक है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं बोलने से पहले कुछ भी। So thank you everyone. Thank you for being patient audience. I hope आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल हो, आपने कुछ सीखा हो यहाँ पर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप मेरे से पूछ सकते हो, एंड आई विल गाइड यू यहाँ पर। एंड कोई भी अगर वो प्रोजेक्ट करके देगा ये वाला आईटी कैंप की, वी आर श्योर कि हम सर्टिफिकेट देंगे उसको, ठीक है। ओके, मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट कर सकते हैं। यार मेरे साथ में क्यों ही करना चाहिए, क्लियरली ज़्यादा पेड़ ज़्यादा बड़ी जवाब में बैठे बिल्कुल ही भाई। कैसा है तुम जैसे लोग इस फील्ड में हो, ज्योग्राफी वाले साहिल डॉट छावड़ा SAHIL तुम्हें थोड़ी पता होगा डॉट छावड़ा CHHABRA मतलब give me trees S से बाद में give me trees .org, okay. I will wait for your emails. हाँ, मैं email रिपीट कर देता हूँ, साहिल डॉट छावड़ा SAHIL .CHHABRA give me trees ऐसे उसमें .org। स्टिल किसी को चाहिए होगा हरितक्रम हाँ, शेयर। बाकी अभिषेक के पास थैंक यू Thank you so much, sir.